فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ شالوم۔ آج کا جو ہمارا وشا ہے، جو یہ پورا کلام جس وشے کے ارد گرد ہم خدا کے کلام سے روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کے روح سے سیکھنے جا رہے ہیں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا، یعنی عبرانی میں احیا اشیر احیا۔ ابھی میں جو ہوں سو میں ہوں کا مطلب کہ میں جیسا ہوں ہمیشہ ویسا ہی ہوں اور تھا اور رہنے والا ہوں، ہمیشہ یعنی کبھی نہ بدلنے والا خدا جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، یعنی احیا اشیر احیا۔ مگر اے انسان، اے آدم ذات، تو مجھے اپنے ایمان میں، اپنے وشواس میں کیسے پاتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، چنگا کیا۔ مطلب میں تو سمپورن ہوں، مطلب میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی احیا اشیر احیا۔ تو اپنے ایمان سے کس طرح تاکتا ہے؟ جیسا اور جتنا تو اپنے ایمان میں اپنے آپ کو مجھ میں دیکھے گا، اتنا اور ویسا ہی تیرے لیے ہو جائے گا۔ اس وقت شاگردوں نے یسوع کے پاس الگ آ کر کہا کہ ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں۔ تو جب آپ اپنا وشواس، ایمان، رائے کے دانے جتنا بھی یسوع مسیح میں ڈالتے ہیں، یعنی تاکتے ہیں، یعنی رکھتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کے کلام کو سننا اور پھر لگاتار ہی سنتے رہنا، تو آپ کا وشواس، ایمان کامل اور سمپورن ہو جاتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ ہر چیز کا ایک موقع، ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا، یعنی 99، 100 سے ایک سال کم، تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اب جو یہ 99 برس ہیں، یہ اس کے ایمان کا پیمانہ ہے، یعنی انتظار کا وقت، یعنی وشواس میں بنے رہنے کا وقت۔ اب پھر لکھا ہے، خدا اپنے سارے کام کاج پورے کر کے 7ویں دن فارغ ہوا۔ اب 7واں دن ہے یسوع مسیح، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ اب خدا کے نزدیک یہ کلام لکھنے کے مطابق 7ویں دن ہے، یعنی 7واں دن ہے، اور پیچھے وہ جن دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا وہ لکھنے میں 6 دن ہے، پڑھنے میں 6 دن ہے، کلام کے مطابق گواہی کے طور پر وہ 6 دن ہیں۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا،
जैसी देर बाज लोग समझते हैं। जो 6 दिन है खुदा के काम वो 6000 साल हैं। और 7वां दिन यानी आराम का दिन यानी यीशु मसीह अब जो आराम का दिन वो 1000 साल आराम का दिन है। और आराम का दिन शुरू होता है मसीह यीशु से। लेकिन सबसे पहले दाखिल कौन हुआ आराम के दिन में? खुदा बाप, आसमानी बाप। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? यानी आराम के दिन में, 7वें दिन में। 7वां दिन है, 7 अंक है संपूर्णता, सच्चाई, शलोम यानी यीशु मसीह। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, यानी आराम के दिन में, 7वें दिन में। नहीं तो मेरे कामों ही के सबब मेरा यकीन करो। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है, यानी आराम के दिन में भी वो काम करता है और मैं भी काम करता हूं। बस खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों में सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐ भाइयों और बुजुर्गों सुनो, खुदाए जोए जलाल हमारे बाप इब्राहिम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हरान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हरान में जा बसा, और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी, मगर वादा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जे में कर दूंगा। हालांकि उसके औलाद ना थी, बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कासिर और समुंदर के किनारों की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप राय के बीज जितना भी ईमान को मसीह को देखते हुए ताकते हैं, तो वो एक दरख्त यानी फलदार दरख्त बनकर निकलता है जो अपने मौसम में फल देता है। यानी मसीह में जाकर अधूरा विश्वास भी संपूर्ण रूप में बदल जाता है। मगर मसीह यीशु नाम के बगैर वो विश्वास उतना ही है जितना आप कर रहे हैं, यानी राय के भी जितना है। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सारी बातों में बेकयाम, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। यीशु ने कहा, खुदावंद की रूह मुझ पर है। मगर किश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो नहीं।
पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस किश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। यानी ईमान की जो चीजें मुखालफत करती हैं, मुश्किलें, तो जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा। अब यहां पर मुकाशफा है। जब आप मसीह यीशु को ताकते हो तो आप मसीह यीशु की तरह, जिस तरह खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती थी, आप भी जुम्बिश करते हो जब तक आप यीशु को ताकते हो। और जब तक आप मुश्किलों को ताकते हो, तूफानों को ताकते हो, आंधियों को ताकते हो, फिर आप डूबने लग जाते हो, और फिर आपको पुकारना पड़ेगा, चिल्लाकर पुकारना पड़ेगा। रूह ऐसी आहें भर भर के दुआ करती है जिसका बयान करना नामुमकिन है। और जब इज़राइल गुलामी से तंग आ गया और उन गुलामी वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब वो कराए, यानी उन्होंने कराह कर अपने बाप दादा के खुदा यानी अब्राहम, इज़हाक, यकूब के खुदा को पुकारा, तो उसने सुनी और उनकी दुआ कबूल हुई। तो जब आपको खुदावंद से मदद चाहिए तो आपको चिल्लाकर, यानी चिल्लाना यानी खुदावंद दिल की नीयत को परखता है। आपको दिल की नीयत के इरादे से, पाक इरादे से खुदा को पुकारना होगा। उसमें एक आह भी, अगर आप खुदा को याद करके एक आह भी, एक दर्द भरी आह भी भरते हैं ना, अपने मन में महसूस करते हैं खुदा को याद करके, आप लंबी सांस भी लेते हैं ना घबराहट में या डर में, तो वो कराहट है, वो आहें हैं। तो जिस तरह पतरस ने चिल्लाकर कहा और इजराइलियों ने कराहने की आवाज खुदा के तख्त तक पहुंची, तो खुदा को वो वादे याद आए जो अब्राहम और इज़हाक और यकूब से किए थे। उन्होंने वो वादे याद किए, तो फिर मूसा को झाड़ी के वसीले बुलाहट आई। तो ऐसे है, जब आप मुश्किल में होगे तो खुदा को दिल से पुकारना होगा, चिल्लाकर। जब विश्वास में आप डगमगा जाते हो, डर जाते हो, खुदा से आपकी निगाह हट जाती है, ऐ खुदावंद मुझे बचा, यस्सु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। यस्सु ने फौरन उसे हाथ बढ़ाकर और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, ऐ कमजोर ईमान वाले, तूने क्यों शक किया। इसलिए लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहे। मतलब लगातार ताकते रहना। दुनिया में कुछ भी होता रहे, तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ भी होता रहे, आसपास कुछ भी, मेंटली कुछ भी चल रहा हो, फिजिकली कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ताकते रहना है। चाहे दुनिया, पूरी दुनिया क्यों नहीं बरखलाफ हो गई, लेकिन हमें डरना नहीं है, विश्वास में यीशु मसीह को ताकते रहना है और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि शरीयत यानी जो बदन के वसीले हम मूसा के 10 हुक्म को पूरा करते हैं, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ, यानी वो बदन की रास्तबाजी और बदन तक ही है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है पूरा होगा, वो बेइंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी
ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुअस्सिर होगा। बड़ा आसान है पैदाइश में से इस कलाम को पढ़ना, इंसानी नीयत में, जिस्मानी नीयत में। खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को पैदा किया, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं रूहानी हुआ, और रूहानी नीयत में मुकाशफा की रूह के वसीले से यह कैसे पूरा हुआ? पैदाइश में जो पहली सृष्टि बनाई, जिस्मानी खाकी सृष्टि बनाई, उसमें सबसे पहले जमीन और फिर आसमान को पैदा किया। लेकिन नई सृष्टि में, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वो ही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, यह नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहरी चीजों से बना हो। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, यानी पैदाइश के पहले बाब में क्या लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन को पहले बनाया और फिर खाकी को, यानी पहले आदम को जो जमीन से था। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। तो पहली पैदाइश में, पहली सृष्टि में आसमान को दूसरे नंबर पर रखा, यानी आसमानी को, रूहानी को, और जमीनी और जिस्मानी को पहले नंबर पर। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है, पहला आदमी यानी जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। यानी इब्तिदा में पहले खुदा ने जमीन को और फिर आसमान को। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका। दम इब्रानी में कहते हैं खून को, फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। चुनाची मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। और यहां पर मुकाशफा है, जब आप अलिफ का न्यूमेरिकल नंबर है 1000, यानी, और आदम की कुल उम्र है 930 में से, यानी अगर आप 70 यानी उसका 7वां हिस्सा प्लस करते हैं, यानी 7 अंक है संपूर्णता का, सच्चाई का। तो जब 930 में संपूर्णता ऐड करते हैं तो वो 1000 बनता है, यानी ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहे। तो अगर 1000 में से संपूर्णता निकाल दें, यानी 70 बरस निकाल दें, तो बनता है 930। और जब मसीह यीशु शुरू हुए मनादी करना, खुशखबरी देने की मनादी करना शुरू हुए, तब वो 30 के थे। 30 की उम्र से, यानी जहां पर 930 का आदम होकर मरा, वहां से यीशु मसीह यानी संपूर्णता यानी 7 अंक यानी 70 बरस, वहां से शुरू हुए संपूर्णता। चुनाची मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताबे मुकद्दस के बामुजिब हमारे गुनाहों के लिए मोया और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के बामुजिब जी उठा। और जब 930 और 7 अंक यानी संपूर्णता यानी आराम का दिन प्लस करते हैं तो 1000 बन जाता है। और अलिफ का न्यूमेरिकल अंक है 1000। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहे, यानी संपूर्ण। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे
जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, और ये कहकर उसने अपने हाथ और पसली उन्हें दिखाई। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा कि रूहुल कुद्स लो। पहले आदम में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया। अब दूसरा आदम, दूसरे आदम में क्या फूंक रहा है? रूहुल कुद्स फूंक रहा है। रूह कहते हैं रूहानी तालीम को, और कदूस यानी पवित्र, यानी यीशु मसीह की सिखाई हुई बातें, और कुस है कदूस यानी पवित्र तालीम, पवित्र बातें जो यीशु मसीह ने सिखाई। तो रूहुल कुद्स लो। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाह के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमल दारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवाई करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे। अब यीशु मसीह से जितनी भी आदमजात में अक्ल है वो कहां से आई? नेको बदी के दरख्त के पहचान के फल खाने से। फल किसने खाया? हव्वा ने खाया। खिलाया किसने? चलाक सांप ने। और जमीन आदम के सबब से लानती हुई। तो पहले क्या था? अकल के इरादे पूरे करते थे। यीशु मसीह से जितनी पहली अकल है आदम के बाद, आदम के नाफरमानी के बाद और यीशु मसीह के पहले बीच वाली जितनी अकल है वो उस नेको बदी के दरख्त का फल खाने से वो हिकमत आई। इसलिए लिखा है कि खुदा की हिकमत को, जब दुनिया ने खुदा की हिकमत को अपनी हिकमत से, खुदा की हिकमत के मुताबिक खुदा को ना जाना, तो इसीलिए क्योंकि वो अकल कहां से थी? नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाने से। और वो अब्लीस के डायरेक्शन दिखाने से आंखों को खुशनुमा और अक्ल बख्शने में खूब है। वो उसने हवा ने लिया और अब आदम को भी दिया और उसके सबब से जमीन लानती हुई और सारी लानत पूरी आदमजात में फैल गई। और दूसरों की मानिंद ताबा तौर पर गजब के फर्जंद थे, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से और बड़ी मोहब्बत के सबब जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। इसीलिए लिखा है क्योंकि आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और दम कहते हैं खून को, और खून यानी जमीन उसके सबब से लानती हुई, उसके खून के सबब से, और दूसरे के खून के सबब से जमीन पाक हुई। एक के खून के सबब से जमीन लानती हुई, दूसरे के खून के सबब से यानी यीशु मसीह के खून के सबब से जमीन पाक हुई। और इसीलिए लिखा है कि लहू यानी खून और गोश्त स्वर्गराज के यानी बादशाहत के वारिस नहीं हो सकते, लेकिन बादशाहत खून और गोश्त की वारिस हो सकती है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है यानी बदन के सबब से, 10 हुक्म की आज्ञा को पूरा करने के सबब से, ताकि कोई फकर ना करे, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, और उसने
تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے، یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا۔ کوئی نہیں جانتا بیٹا کون ہے سوا باپ کے، کوئی نہیں جانتا باپ کون ہے سوا بیٹے تھے، اور تیسرا وہ شخص جسے بیٹا خود اس پر ظاہر کرنا چاہے، جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے، جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دنائی سے تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اسی سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت باخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ تم یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔